مگر حسین ایک ہیں، لٹا نہیں ہے کس کا گھر، کٹا نہیں ہے کس کا سر، لٹا نہیں ہے کس کا گھر، کٹا نہیں ہے کس کا سر، سبھی ہے خون میں تربتر، مگر حسین ایک ہیں۔ نعرے صلوات۔ محمد و آل محمد۔ اے رونے والوں ہے یہ روایات میں لکھا، جس دم قیام کوفے میں مختار نے کیا، جو بھی تھے قاتلان شہیدان کربلا، ان میں سے کوئی جب بھی گرفتار ہوتا تھا، حکم امیر پرواسطہ جب سناتا تھا، ارے مختار سر کو پیٹ کے بس روتا جاتا تھا۔ ایک روز تھا یہ کوفے کے دربار کا سما، ابن نمیر اپنے ستم کرتا تھا بیان، ارے توڑی تھی میں نے سینے اکبر میں خود سنا، ارے اٹھتا تھا شور خیموں سے مارا گیا جوان، ماں جیتے جی گزر گئی، زینب بھی مر گئی، ایک بچھی میری کتنے جگر پار کر گئی۔ ایک روز کر کے لایا گیا ہرملاسی، بولا ورن میں نے چلائے تھے 3 تیر، ارے اس وقت پہلا تیر
چلایا تھا اے امیر، بھر کر چلا جو مشق کو مظلوم کا سفیر، ارے مشکیزے سے جو تیر میرا پار ہو گیا، ایسا لگا کہ قتل علمدار ہو گیا۔ بولا لئی ہے کرب کا یہ دوسرا مقام، لائے جو اپنی گود میں بے شیر کو امام، ارے سوکھی زباں پھراتا تھا ہونٹوں پہ حسن کام، یوں قطع ابن زہرا کا میں نے کیا کلام، ہل ہل گیا لہد میں جگر بو تراب کا، ارے مقتل میں نہر ہو گیا بچار باب کا۔ دربار میں یہ سن کر قیامت کا تھا سما، پیر و جوان روتے تھے لے لے کے ہچکیاں، پھر بولا حرملا بھی باقی ہے داستان، جس دم تیرا حسین تھا تیروں کے درمیان، ارے وہ تیر آخری تھا جو میں نے چلایا تھا، اس تیر نے حسین کو زین سے گرایا تھا۔ پھر شوروا حسین کا اٹھتا تھا بار بار، جب قید کر کے لایا گیا شمر بدشیار، بولا وہ میرے ہاتھ میں خنجر تھا تیز دھار، اور جس سے کیے حسین کی گردن پہ تیرا وار، خنجر روا تھا حلق پہ ابن بطول کے، اور دل کٹ رہے تھے ساتھ آل رسول کے۔ اب اس کے بعد میر تکلم بیاں ہو کیا، اے پرستار سوچنا دل میں کبھی ذرا،
کیوں اتنا وقت قاتل شبیر کو لگا اور کس واسطے حسین کا کٹتا نہ تھا گلا اور محشر میں یہ کھلے گا ستم کائنات پہ محشر میں یہ کھلے گا ستم کائنات پہ اور خنجر کے کچھ نشان ہیں زہرا کی ہاتھ پر اے رونے والوں ہے یہ روایات میں لکھا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش منور معطر مطهر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كيف الورى مصباح الظلم جميل الشيء وشفيع الأمم والله عاصمه والبراق مركبه سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين سيد المرسلين ورحمة للعاشقين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين وغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم وشجاعتهم وسخاوتهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صلوات بارے دیگر دعوت بزرگان ملت برادران ایمانی میں عام طور سے جس طریقے سے خطبہ ذاکرین کہتے ہیں کہ آگے تشریف لائیں میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا جس کی مرضی ہے وہ آگے تشریف لے آئے کیونکہ یہ فاصلہ ہم برداشت نہیں کرتے کیونکہ ہم بلا فاصل کے ماننے والے ہیں آپ کا اختیار ہے تشریف لائیں نہ لائیں آگے لیکن جہاں پر بھی بیٹھے رہیں
توجہ سے میرے معروضات کو سنیے گا. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھے. آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے مگر منبر پر اس عقیدے کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ میری آواز میرا ساتھ دے نہ دے پر آپ میرا ساتھ ضرور دیں گے. تو اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو اپنی بیداری کا ثبوت بآواز بلند نعرہ صلوات دیں. آج دن کی مجلس میں نے ایک جملہ کہا تھا, دل چاہتا ہے یہاں پر اس کو دہرا دوں کہ یہ جو منبر حسینی ہے اور یہ جو فرش عزا ہے, یہاں پر نہ سامعین کو ذاکر پر فوقیت ہے نہ ذاکر کو سامعین پہ فوقیت ہے. توجہ. اسی طریقے سے دنیاوی دستور میں دیکھیں تو ایک چیز ہوتی ہے نظم اور ایک ہوتی ہے نثر. دنیاوی اعتبار سے نظم کو نثر پہ فوقیت ہے, لیکن ذکر اہل بیت میں آئے تو نہ نظم کو نثر پہ فوقیت ہے نہ نثر کو نظم پر فوقیت ہے. وجہ یہ ہے کیونکہ یہ ذکر ان کا ہے کہ جو سب سے اعلیٰ ہے, جو سب سے برتر ہیں, جو سب سے افضل ہیں بعد خدا. اور اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو منبر ہے, اس منبر پر ذاکر تو بدلتے ہیں پر ذکر کا معیار نہیں بدلتا. ذاکر مختلف ہوتے رہتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں, لیکن جو حق کے پرستار ہیں, جو سچائی کا پیغام دینے والے ہیں, ان کا مرکز اور منبع اور معیار ذکر معرفت اہل بیت اور معرفت خدا ہوا کرتا. میری گفتگو چونکہ چل ہی رہی ہے, عشرے مجالس میں یہی سلسلہ چل رہا ہے معرفت اہل بیت اور ہم عنوان سے, تو بجائے اس کے کہ ہم کوئی اور موضوع چھیڑیں, اسی سلسلے میں گفتگو کریں. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کئی سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں اس پر کہ ہم خدا کا ذکر کریں گے, یہ تو ثابت ہے, طریقے سامنے ہیں. نماز پڑھیں گے خدا کا ذکر ہو جائے گا, روزہ رکھیں گے خدا کا ذکر ہو جائے گا, حج کریں گے مستطیع ہوتے ہوئے خدا کا ذکر ہو جائے گا, اور عقائد کے دائرے میں فرش عزا بچھا دیں گے خدا کا ذکر ہو جائے گا, ماتم کریں گے خدا کا ذکر ہو جائے گا, نوحے پڑھیں گے خدا کا ذکر ہو جائے گا, ماتم داری, سینہ زنی, سب کچھ یہ ملا جلا کر عقائد اعمال سب کچھ جو ہم کرتے ہیں یہ سب نتیجتاً خدا کا ذکر ہے. تو ایک جز تو واضح ہے کہ تم میرا ذکر کرو, اس پہ تو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. تم میرا ذکر کرو, میں ساتھ بولیے گا ذرا, یہ تو واضح ہے کیونکہ میں نے مثال دی. مسئلہ دوسرا ہے کہ میں تمہارا ذکر کروں گا. کیا آج تک کوئی ایسی سامنے بات آئی کہ جس کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہم نے نماز پڑھی, ہم نے اعمال کیے, ہم نے اپنے عقائد کو سدھار لیا اور عقائد کے دائرے میں میں نے اپنے اعمال کیے تو اللہ نے پلٹ کر ہمارا ذکر کر دیا؟ ایک سوال ہے نا. یہی سوال
मुफस्सिरीन के जहन में भी आया था। चुनांचे इसी सवाल को मासूमीन के अक़वाल के दायरे में उन्होंने इसका जवाब दिया कि वो खुदा हमारा जिक्र कैसे करेगा, हमारे जिक्र के जवाब में। हमें कैसे जिक्र करना उसका और वो कैसे जिक्र करेगा हमारा। तो इसका जवाब मुफस्सिरीन ने बड़े प्यारे अंदाज में दिया। पहले क्या कहा आयत में, उज़कुरूनी फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो हम कैसे जिक्र करें कि खुदा हमारा जिक्र करे। तो मुफस्सिरीन ने तफसील बताई, उज़कुरूनी बिश्शौक़े वल महब्बा अज़कुरकुम बिल वस्ले वल क़ुर्बा, तुम मेरा जिक्र करो शौक और मोहब्बत के साथ, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा तुमसे क़ुर्बत इख्तियार करके। उज़कुरूनी बिल इस्लाम अज़कुरकुम बिल जिनान, तुम मेरा जिक्र करो मुसलमान होकर, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा जन्नतें देकर। उज़कुरूनी बिल इरादा अज़कुरकुम बिल इफ़ादा, तुम मेरा जिक्र करो इरादे के जरिए, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा तुम्हें फायदा देकर। यहाँ पर मुफस्सिरीन ने लफ्ज़ इरादा दिया। तो यहाँ पर एक पैगामी जुमला आपको माफी का फरमान पहुंचा दूं, फिर पलट कर आऊं। क्यों? क्योंकि मासूम फरमाते हैं कि इंसान की 3 तरीके की कैटेगरी होती है। एक वो होता है जो इरादा करता है और साथ साथ अमल भी करता है। कुछ वो होते हैं जो इरादा तो करते हैं मगर अमल नहीं करते, और कुछ वो होते हैं कि जो ना इरादा करते हैं और ना अमल करते हैं। ये किसका फरमान है? मासूम का फरमान। पुरानी नेमत बचा लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जो ये नेमत है, जो ये सांस अंदर जा रही है और आ रही है, इसकी अहमियत और कीमत हमें नहीं मालूम। अहमियत जब मालूम होती है जब किसी की सांस अंदर तो जाए और बाहर आने के लायक ना रहे। क्या अर्ज कर रहा हूं? जब हम देखते हैं कि इसकी सांस तो अंदर गई लेकिन अब सांस बाहर नहीं आई, वो चला गया, उसकी रूह चली गई, तो पता चला कि नेमत की अहमियत का अंदाजा तब होता है जब नेमत हाथ से निकल जाती है। जब नेमत चली जाती है तब अंदाजा होता है। माँ बाप क्या है इसकी अहमियत नहीं मालूम होती, लेकिन जब वो दारे फानी से दारे बाकी की तरफ कूच कर जाते हैं तब एहसास होता है कि ये कौन सी नेमत हमसे चली गई। अजीजाने मोहतरम, हमारे सामने हमारे मासूमीन ने एक एक चीज को खोल खोल कर इसीलिए रख दिया है ताकि हम नेमत के जाया होने के बाद शुक्राना न करें, क्योंकि नेमत जाया होने के बाद पलट कर नहीं आती। कुरान ने इरशाद फरमाया, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम ला इन कफरतुम फइन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर तुमने मेरे दिए हुए नेमतों का शुक्राना किया, जाया होने के बाद नहीं, वजूद में अगर तुमने उसका शुक्राना किया तो गोया मैं तुम्हारी इस नेमत में इजाफा कर देता हूं। अगर तुमने मेरी नेमतों में कुफ्र किया तो याद रखो मेरा अजाब सख्त और शदीद है। तो अल्लाह का शुक्राना अदा करना चाहिए। वो कैसे शुक्र होगा? तो अब पलट किया है, फिर वो शुक्र होगा जिक्र के जरिए। तो जिक्र कैसे करेंगे हम? शौक और मोहब्बत के साथ। जब हम शौक और मोहब्बत के साथ जिक्र करेंगे तो जवाब में क्या मिलेगा हमें? अल्लाह भी हमारा जाकिर बनेगा। पर वजह यह है कि हम उसका जाकिर होना देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी
बसारत तो काम कर रही है, बसीरत काम नहीं कर रही है। खुदा के वास्ते जिस दिन बसीरत काम करने लगेगी, हम देखेंगे कि जितना जिक्र हमने खुदा का नहीं किया है, उससे कहीं ज्यादा खुदा हमारा जिक्र कर रहा है। जितनी नेमतों का जिक्र हम शुक्र हमने नहीं बजा लाए, कहीं उससे ज्यादा वो नेमतें हमें दे रहा है। तो हम जिक्र करेंगे अल्लाह का शौक व मोहब्बत के साथ, अल्लाह हमारा जिक्र करेगा वस्ल कुर्बत के साथ, हम खुदा का शुक्र करेंगे इस्लाम के साथ, वो हमारा जिक्र करेगा इकराम के साथ, हम उसका जिक्र करेंगे इस ईमान के साथ, वो हमारा जिक्र करेगा जनान के साथ। अब सुने, फिर फरमाते हैं मुफस्सिरीन, कहते हैं उज़कुरूनी बिला गफला, तुम मेरा जिक्र करो बगैर गफलत के साथ। अज़कुरुकुम बिला मुहला, तुम मेरा जिक्र करोगे बगैर गफलत के, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा बगैर मोहलत के। उज़कुरूनी बिद्दुआ अज़कुरुकुम बिल अता। अब समझ में आ रहा है ना कि अल्लाह हमारा कैसे जिक्र कर रहा है। दुआएं कबूल हो जाती हैं, मगर शुक्राना नहीं बजा लाते। ये नहीं देखते कि अगर हमने दुआ करके अल्लाह का जाकिर बने हैं हम, तो अल्लाह भी हमारा जाकिर बना है अपनी अता करके। अल्लाह हमें दे के हमारा जाकिर बन रहा है। अजीजाने मोहतरम, हम जिस तरीके से चाहें अल्लाह का जिक्र करेंगे, पलट के अल्लाह भी हमें उसका जिक्र करेगा। अब और मुफस्सिरीन लिखा है कि लंबी फहरिस्त है, कहां तक मैं शुमार करूं, लेकिन चंद चीजें मैं बता रहा हूं। मुफस्सिरीन ने मासूम के अक़वाल के साय में लिखा, उज़कुरूनी बित्तौबा अज़कुरुकुम बिल मग़फ़िरा, तुम मेरा जिक्र करो तौबा करके, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा तुम्हें माफ करके। उज़कुरूनी मिन है तो मखलूक अज़कुरुकुम मिन है तो खालिक, तुम मेरा जिक्र करो मखलूक बनकर, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा खालिक बनकर। उज़कुरूनी मिन है तो मरबूब अज़कुरुकुम मिन है तो रब, तुम मेरा जिक्र करो मरबूब बनकर, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा तुम्हारा रब बनकर। उज़कुरूनी मिन है तो मरज़ूक अज़कुरुकुम मिन है तो राज़िक, तुम मेरा जिक्र करो मरज़ूक बनकर, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा राज़िक बनकर। और आगे बढ़े, उज़कुरूनी कई चीजें हैं, बस चूंकि और भी पैगाम देना है, मैं खत्म करूं और इस तमाम बातों को समेट कर सिर्फ एक जो जिक्र है, जो हम कैसे करेंगे और वो कैसे जिक्र करेगा उसको सुने, लेकिन एक मर्तबा तरतीब से सारी बातें सुने। तुम मेरा जिक्र करो शौक व मोहब्बत के साथ, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा वस्ल कुर्बत के साथ। तुम मेरा जिक्र करो इस्लाम के साथ, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा इकराम के साथ। तुम मेरा जिक्र करो ईमान के साथ, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा जनान के साथ। तुम मेरा जिक्र करो इरादे के साथ, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा इफादे के साथ। तुम मेरा जिक्र करो बगैर गफलत के, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा बगैर मोहलत के। तुम मेरा जिक्र करोगे मजबूर होकर, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा कादिर होकर। तुम मेरा जिक्र करोगे मजबूर होकर, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा कादिर होकर। तुम मेरा जिक्र करोगे अपनी महदूद कुव्वतों के साथ, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा अपनी लामहदूद कुव्वत। लग रहा है कि मैं समझा नहीं पा रहा, मैं खुद पे इल्जाम लगाऊंगा, आप पे नहीं इल्जाम लगाऊंगा। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। अपनी किसी मजलिस में आप इल्जाम नहीं लगाया कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ज्यादा ज़हीन है और समझ रहे हैं मेरी बात को, लेकिन मेरी समझाने में शायद कोताही हो रही है। लेकिन नहीं, अल्लाह की का जिक्र हम कर रहे हैं अपनी महदूद कुव्वतों के साथ। अल्लाह हमारा जिक्र कर रहा है अपनी लामहदूद कुव्वतों के साथ। खुदा की कसम, एक एक जुमले पर अगर हम गौर करें तो देखें हमने अपने जिस्म की कितनी कुदरत राह खुदा में सर्फ की है। कितनी कुदरत, 5 मिनट की नमाज पढ़ने में जान निकल जाती है, कितनी कुदरत राह खुदा में सर्फ की है, लेकिन वो अपनी कुदरत मुतलका के जरिए हमारा जिक्र कर रहा है। फिर अब सुने आगे, तुम हमारा जिक्र करो मखलूक बनकर, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा खालिक बनकर। तुम मेरा जिक्र करो मरज़ूक बनकर, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा राज़िक बनकर। तुम मेरा जिक्र करोगे
आबिद बनकर, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा माबूद बनकर। तुम मेरा जिक्र करोगे माबूद बनकर नहीं, आबिद बनकर। आबिद ही रहना, आगे न बढ़ना, कभी अपनी हद से आगे न बढ़ना। इस पर गुफ्तगू हो चुकी है, जहन जा रहा है लेकिन मैं रोक रहा हूं। तो अजीजान मोहतरम, तुम मेरा जिक्र करना अपनी महदूद कुव्वतों के साथ, मैं जिक्र करूंगा अपनी लामहदूद कुव्वतों के साथ। गुफ्तगू खत्म करूं, एक जुमला कह दूं, जो आखिरी जुमला, उज़कुरूनी मिन हैसो अंता अज़कुरकुम मिन हैसो अना। तुम मेरा जिक्र करो तुम रहकर, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा मैं रहकर। तुम मेरा जिक्र करना तुम की औकात में, मैं न बनना, क्योंकि ये लफ्ज़े मैं बस अल्लाह पे ही जचता है। ये मैं ना क्या करो, हम कहा करो, क्योंकि पता नहीं कब ये लफ्ज़ मैं तुम्हारा गुरूर बन जाए। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को दोस्त नहीं रखता। अच्छा, अल्लाह तकब्बुर करने वाले को दोस्त नहीं रखता, लेकिन अल्लाह का अस्मा उठाएं, अल्लाह का नाम है मुतकब्बिर, तकब्बुर करने वाला। एक फिक्र है ना, तो वो दोस्त भी नहीं रखता लेकिन खुद ही मुतकब्बिर है। तो जवाब आसान है, बच्चा बच्चा जवाब देगा। कहा ये जवाब है कि हम मुतकब्बिर किस बात पे गुरूर करें, हम किस बात पे गुरूर करें। ये जिस्म तुम्हारा है, ये रूह तुम्हारी है, मिल्कियत है। अगर मिल्कियत है तो खुदा के मुकाबिल में अपनी रूह अपने पास रख के दिखाओ। है हिम्मत तो दिखाओ कुदरत खुदा के मुकाबिल में। नहीं दिखा सकते, मजबूर हो। भाई मैंने क्या कहा था, वाजिबुल वजूद मुमकिनुल वजूद। वाजिबुल वजूद अल्लाह की जात है जो कभी मोहताज नहीं होता। मुमकिनुल वजूद हम है जो हमेशा मोहताज रहते हैं। चलने में पैर के मोहताज, बोलने में जबान के मोहताज, लिखने में हाथ के मोहताज, सुनने में कान के मोहताज, देखने में आंखों के मोहताज। इतने मोहताज है फिर भी गुरूर, इतने मुस्तकील है मजबूर है फिर भी गुरूर। अरे किस बात पे गुरूर है? अरे जिसकी विलादत नजिस हो, जिसकी मौत इतनी नजासत में हो कि मरने के बाद इतना नजिस हो जाए कि खुद भी नजिस है, कोई छू दे वो भी नजिस। अरे जो दो नजासतों के दरमियान की जिंदगी वो कैसे इतनी आजादाना हो जाएगी? फिर सुने, मौला फरमाते हैं किस बात पे तुम्हें गुरूर है, किस बात पे अकड़ है। आज एक वो जो कि टॉयलेट साफ करता है उससे अपना हाथ टच नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसने गलाजत साफ की है। कमाल है, गुरूर का ये असर है कि गलाजत साफ करने वाले को हाथ तो नहीं लगा रहे हो। मौला फरमा रहे हैं चार चार नजासतें हर वक्त अपने जिस्म में लेके घूम रहे हो, चार नजासतें अपने शिकम में लेके घूम रहे हो। गुरूर किस बात का है? गुरूर तब करो कि जब तुम बेनियाज हो। अल्लाह बंदों के लिए मुतकब्बिर होना पसंद नहीं करता। वो क्यों ना गुरूर करे कि जिसने अहले बैत को खल्क किया, वो क्यों ना गुरूर करे कि जिसने उन्हें खल्क किया है, कि जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। बचपने से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, पूरी जिंदगी, सिर्फ जिंदगी नहीं अपनी मौत राह खुदा में कुर्बान कर दी। तो आप समझ में आया, जब अल्लाह हम आम बंदों का जिक्र करता है सिर्फ दुआ करने पर, सिर्फ इस्लाम लाने पर, सिर्फ ईमान लाने पर, सिर्फ इरादा करने पर, सिर्फ तकवा हासिल करने पर, तो उसका कितना जिक्र करेगा कि जो कुल्ले ईमान हो, जो जिसकी मोहब्बत तकवा हो, उसका वो कितना बड़ा जाकिर होगा। तो अब समझ में आई ना बात
کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہمارا ذکر کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی منزل ہے کہ ان کا ذکر جنہوں نے اپنی پوری زندگی خدا کا ذکر کیا، آج ہم بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں، خدا بھی ان کا ذکر کر رہا ہے۔ گویا یہ وہ عبادت ہے کہ جو اللہ نے اس قوم کو خاص دیا ہے۔ یہ خاص شرف ہمیں نصیب ہے کہ جہاں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہیں اہل بیت کی تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، وہیں اہل بیت کے فضائل پڑھ کے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ صرف تسبیح کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ساتھ ساتھ صرف یہ بتائیں، بس یہ آخری الحمدللہ پہ گفتگو تمام ختم ہوا۔ مولا سے پوچھا، مولا یہ بتائیں کہ یہ جو ذکر الہی ہے، کیا یہ تسبیحات اربع سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیا بس یہی ذکر ہے، یہی تسبیح ہے؟ مولا نے فرمایا، کس نے کہا؟ ذکر صرف زبان سے نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ گفتگو سنیں، پھر مجلس ختم، مسائل کی طرف آ جاؤں گا۔ ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا۔ مولا نے فرمایا ذکر 3 طریقے سے ہوتا ہے، ذکر باللسان، ذکر بالقلب، ذکر بالاعضاء والجوارح۔ اب کتنی بڑی وسعت ہے اس حدیث میں، سوچ سکتے ہیں کیا کیا چیزیں اس میں داخل ہو جائیں۔ ذکر کرتے رہو، ہم بس یہ سمجھ رہے تھے کہ نماز پڑھا ذکر الہی ہو گیا، روزہ رکھا ذکر الہی ہو گیا، تسبیح اٹھا کے اللہ اکبر کیا ذکر الہی ہو گیا۔ مولا فرما رہے ہیں نہیں، ذکر یہ تو بس صرف ذکر باللسان ہے، تمہارے پاس ذکر بالقلب بھی ہے۔ قلب سے ذکر کرو، کیا مطلب؟ اللہ پر ایمان لاؤ، ذکر بالقلب ہو جائے گا۔ نبوت کا اقرار کرو تو نبوت کا کلمہ پڑھو، ذکر بالقلب ہو جائے گا۔ ولایت کا کلمہ پڑھو، ذکر بالقلب ہو جائے گا۔ لسان پر، اپنی زبان پر مدح اہل بیت کرو، ذکر باللسان ہوگا۔ نماز پڑھو، ذکر باللسان ہوگا۔ ماتم کرو، ماتم کرو، ذکر بالاعضاء والجوارح ہوگا۔ ہماری جانیں قربان ہو امام کے اس کلام پر، اس فصاحت و بلاغت پر کہ دیکھیں، لیکن اب دیکھیں، ایک فکر دے رہا ہوں، حدیث سن لی آپ نے، فکر دے کے ختم، کہ دیکھیں جب ہم ذکر بالقلب کر رہے ہوں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ذکر باللسان بھی کر رہے ہوں، اور جب ہم ذکر باللسان کر رہے ہوں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ذکر بالاعضاء والجوارح بھی کر رہے ہوں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ضروری نہیں ہے کہ بھائی جب میں نے دل سے کہا خدا ایک ہے، بس دل سے ہی تو کہا، زبان سے نہیں کہا۔ اب دل سے کہہ رہا ہوں تو دل سے سنیے گا۔ پھر دوسری چیز کہ صرف زبان سے کہو، دل سے نہیں کہہ رہے ہیں لیکن زبان سے کہہ رہے ہیں، ممکن دل کہیں اور الجھا ہوا ہے، دنیاوی پریشانی مبتلا ہے، لیکن زبان سے کم ذکر کر رہے ہیں۔ ایک بات آ گئی تو اب ایک بات کہہ دوں، آپ کہیں گے یہ مولانا حضرات بھی عجیب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آخری بات ہے لیکن پھر بات سے بات نکالتے چلے جاتے ہیں۔ چلو بات پڑے بار لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زبردستی کا نہیں یہ کرتے، اندر کی عطا ہوتی رہتی ہے تو سوچتے ہیں کہ یہ وہ رزق ہے جو ہمیں مل رہی ہے تو آپ کو بھی مل جائے، کیونکہ رزق صرف کھانا تو ہے نہیں، پر یہ روحانی رزق ہے، ہمیں ملا تو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ جو ہے ذکر، اس ذکر ایک مرتبہ صلوات پڑھیں پر محمد نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ایک سوال بہت عجیب ہے، میرے ایک دوست
से बताया। उसके बाद मैं बहुत वाकई मुतासिर हुआ इस बात से कि एक चीज़ रियाकारी है ना, बात कहाँ है उसको ध्यान रखिएगा। जिक्र बिल क़ल्ब, जिक्र बिल लिसान। जिक्र बिल क़ल्ब की बात कर चुका, लिसान का याद। जब जिक्र बिल लिसान बहुत से होते हैं, खुदा हम सबको रियाकारी से बचाए, क्योंकि रियाकारी शिर्क खफ़ी है। मासूम का फरमान है, शिर्क खफ़ी है। तो अपने को मुशरिक ना बनाएं, जो कुछ करें वो खुदा के लिए करें। और मैंने एक जुमला कहा था कि हमारा दीन, हमारा मजहब हमसे कमियत नहीं चाहता, कैफियत चाहता है। आपकी ज़ुबान में कहूँ, जो अक्सर इंग्लिश वाले बच्चे हैं, जवान हैं, कि ये हमारा मजहब हमसे क्वालिटी चाहता है, क्वांटिटी नहीं चाहता। ठीक है ना, कैफियत चाहता है। कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी दुआ कुमैल पढ़ें, दिल नहीं कर रहा है मगर पढ़े चले जा रहे हैं। क्यों? जिक्र बिल लिसान करना है ना। ज़रूरी नहीं कि पूरी हदीस के साथ पढ़ें, ज़रूरी नहीं कि पूरी दुआ नुतबा पढ़ें, लेकिन 5 लाइन पढ़ें, 5 सत्र पढ़ें, लेकिन बिल्कुल दिल की गहराई और अपने को हाजिर रखें। क्योंकि कमियत यानी भीड़ ज़्यादा, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अगर कैफियत अच्छी है तो उतनी काफ़ी है जितने। अब जो असल बात कहने जा रहा था कि रियाकारी हमसे होती है, डरते हैं कि हम, अक्सर लोग हालांकि रियाकारी नहीं करते, मगर ये होता है कि अगर हम तस्बीह लेके पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर, चाहते हैं कि हर वक्त तस्बीह पढ़ें, ज़बान से जिक्र बिल लिसान करते रहें, तो ये होता है अल्लाह अकबर करेंगे तस्बीह लेके, तो हो सकता है कोई कहे कि देखो कितना बड़ा रियाकार है, अगरचे हम रियाकारी नहीं कर रहे। मेरे एक दोस्त ने बहुत सी बात कही, कहा कि ये जो कलमे तौहीद है, ऐसा कलमा है कि जिसे आप मुंह बंद करके भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा कलमा है कि जो आप मुंह बंद करें, खोलने की भी जरूरत नहीं है, हरकत देने की भी जरूरत नहीं है। आप खुद करके देखें एक बार, मुंह बंद करें, ला इलाहा इल्लल्लाह बोले, सवाब हमें भी मिलेगा। आप बोल के देखें, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह बोले मुंह बंद करके, जितने भी उसके हुरूफ हैं वो बस अंदर के ही हैं, ना उसमें होंठ से टकरा रहा है, ना उसमें वाव की तरह कोई होंठ को गोल करना है, ना मुंह को खोलना है, ना मुंह बंद करना है, कुछ भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला जबान ऊपर जा रहा है, नीचे आ रही है, जबान ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जाएगी, नीचे आ रही है, बस वो तो मुंह बंद करके ही बोल सकते हैं। अगर डर है कि कहीं कोई हमें रियाकार ना कह दे, कोई हमें गलत फहमी का शिकार ना हो जाए, तो अल्लाह का जिक्र भी कर लो मुंह को बंद करके, खुदा भी राजी हो जाएगा, तुम्हारे साथ रहने वाले बंदे भी तुमसे खुश हो जाएंगे। एक सलावत पढ़े बस। अब लफ्ज़ अल्लाह हम जिक्र करते हैं ना, लफ्ज़ अल्लाह को देखें, अब क्या कहूँ, या ख़त्म का अगर आप इजाज़त देंगे तो फिर मैं ये बात कहूँ कि लफ्ज़ अल्लाह भी है। इस लफ्ज़ अल्लाह को हम बस अल्लाह ही तक लफ्ज़ देखते हैं ना, लेकिन इस लफ्ज़ अल्लाह से जिस हर्फ को भी हटाएं तब भी अल्लाह ही बनेगा। सोच रहे हैं आपने क्या कह रहा हूँ? इस लफ्ज़ से किसी हर्फ को हटाएं, आगे पीछे कर दें, तब भी वो अल्लाह की ही गवाही देगा। आप अल्लाह से अलिफ हटा दें, क्या बनेगा? लिल्लाह। ठीक है, लिल्लाह बनेगा, वो भी अल्लाह की तरफ रुजू हो रहा है। आप एक काम करें, अलिफ को रहने दें, बीच से लाम गिरा दें, अल्लाह ना बोले, एक लाम गिरा दें, क्या बनेगा? इलाह, वो भी अल्लाह ही है। ठीक है, आप अलिफ को भी गिरा दें, लाम को भी गिरा दें, क्या बनेगा? लहू, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। उसी के लिए ये जो जमीन और आसमान की मिल्कियत है, उसी की मिल्कियत है। ठीक है, अब आप कहें कि मैं चाहता हूं
کہ बीच के सारे हुरूफ गिरा दूं, एक अलीफ बचे, एक हे बचे, तो याद रखें अलीफ और हे जब बचता है तो लफ्ज़ आह बनता है। मासूम फरमाते हैं ये लफ्ज़ आह भी अल्लाह का नाम है। जब मरीज मरज में मुब्तला होता है तो जब कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, आह कहता है, आह कहता है। आपने महसूस किया होगा, हम में से हर एक मरीज हुए होंगे, जब आह कहता है तो उसे आराम मिलता है। ये आह आराम देता है। भाई जो मरज में अल्लाह को याद करे, अल्लाह उसे कैसे शिफा ना दे दे। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। खत्म गुफ्तगू। और जो सवाल उठाया था कि जब हम अल्लाह का जिक्र कर रहे होंगे कल्ब से, तो जरूरी नहीं है कि हम जबान से भी कर रहे हों। जब जबान से कर रहे होंगे तो जरूरी नहीं है कि आज़ा वल जवारे से कर रहे होंगे। जब आज़ा वल जवारे से जिक्र कर रहे होंगे तो जरूरी नहीं है कि हम लिसान से कर रहे हों या दिल से कर रहे हों। इधर उधर मिलाते चले जाए, जुमले बनाते चले जाए, लेकिन हमारी जाने कुर्बान हो इस्लाम के आला हुक्म नमाज पर कि जिसमें ये तीनों जिक्र मौजूद है। भाई नियत किया कि नमाज पढ़ता हूँ कुर्बत अल्लाह, जिक्र बिल कल्ब हो गया, तकबीर के लिए हाथ उठाया अल्लाहु अकबर, जिक्र बिल लिसान हो गया, रुकू सजदा किया, जिक्र बिल आज़ा वल जवारे हो गया। सलवात पढ़े पर मोहम्मद। कितनी अजीम इबादत है, कितनी अजीम इबादत है अल्लाह की तरफ से, जहां जिक्र की हर किस्म मौजूद है इसके अंदर। तो जब हम जिक्र करेंगे तो वो हमें नहीं भूलेगा। हम अब्द बनेंगे तभी वो हमारा माबूद बनेगा। सिर्फ माबूद तो है ही वो, लेकिन हमें फख्र होगा ये कहते हुए, और वो ये शरफ बख्शेगा हमें कि हम उसके अब्द बन जाएं, वो हमारा माबूद बने। मौला ने क्या फरमाया, मेरे लिए यही शरफ की बात है, इज्जत की बात है कि परवरदिगार तू मेरा रब है। और मेरे लिए इज्जत की बात यही है कि शरफ की बात यह है कि तू मेरा रब है, और मेरे लिए इज्जत की बात यह है कि मैं तेरा बंदा हूं। ये इज्जत अली अलैहिस्सलाम जो कह रहे हैं, इज्जत कह रहे हैं। तो अगर हम इज्जत चाहते हैं तो हम अल्लाह के अब्द बन जाए, अल्लाह का अब्द बनेंगे, उनकी तरह कि जिन्होंने इस्लाम की खातिर, ईमान की खातिर, परचमे इस्लाम को बुलंद करने की खातिर खुद की जान कुर्बान कर दी, और इस हद तक पहुंचे कि आज हम उनकी ज़ियारत जब पढ़ते हैं तो ज़ियारत में सबसे पहले अगर कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अस्सलामु अलैका अब्दुस सालेह। अब्दुस सालेह किसे कहते हैं? हज़रत अबुल फज़ल अब्बास को। अल-मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिह, जो मुती थे, इताअत गुजार थे, किसके? अल्लाह के और रसूल के। वले अमीरुल मोमिनीन, और अमीरुल मोमिनीन की। हम ज़ियारत तो पढ़ते हैं, लेकिन पता है ना, हम जब ज़ियारत पढ़ें तो मेरे भाइयों अपनी इस ज़ियारत का तर्जुमा ज़रूर पढ़ें, ताकि हमें पता चले कि हम जिनसे मुखातब होकर जिनको सलाम कर रहे हैं वो किस लक़ब से याद करके सलाम कर रहे हैं। जब हम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े पे दाखिल होते हैं, खुदा आपको भी ज़ियारत नसीब करे, तो सलामुल्लाहि व सलामुत्ताम कि कहते हैं सलाम हो आप पर और मुकम्मल सलाम हो। मलाइकतुल मुक़र्रबीन, मलाइका की तरफ से आप पर सलाम हो, और जो मलाइका आपके रोज़े पर हैं उन पर भी सलाम हो। अज़ीज़ाने मुहतरम, हज़रत अबुल फज़ल अब्बास की शख्सियत जो है कोई मामूली शख्सियत नहीं है। हमने सिर्फ
शुजाअत हजरत अबुल फजल अब्बास को ही सुना है। लेकिन याद रखें, मैंने उस दिन एक गुफ्तगू की थी कि अक्ल कबूल नहीं करती इस बात को कि मफजूल के रहते हुए, अफजल के रहते हुए मफजूल को तरजीह दी जाए। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपनी लश्कर, अपने फौज का अलमबरदार किसे बनाया? जनाबे अबुल फजल अब्बास को बनाया। क्यों? क्योंकि शुजाअत में सबसे अफजल थे। सिर्फ शुजाअत में अफजल नहीं थे, फकाहत में सबसे अफजल थे, इल्म में सबसे अफजल थे। लश्कर में इल्म में अफजल थे, फकीह थे, आलिम थे, हलीम थे, रहीम थे। वो इस हद तक दर्जात पर फाइज थे कि यहां तक ये कहा गया सलाम में कि जो जनाबे अबुल फजल अब्बास के दर्जात को उनसे कम करके समझे उस पर लानत है। हम दर्जात को कम तो नहीं करते मगर दर्जात समझते भी नहीं है। हमने गौर नहीं किया। माजरतन मैं आप पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, एक मकाम बयान पर होने की वजह से ऐसी बात कह रहा हूँ कि हमें ये शौक दिलाने के लिए, तशवीक के लिए बात कर रहा हूँ कि हम ज़ियारत पढ़ें ताकि जिसकी ज़ियारत पढ़ें उसका माना और उसकी शख्सियत हम पे वाज़ेह हो। या दुआ भी पढ़ें तो जिस दुआ को पढ़ें उसका तर्जुमा पढ़ें ताकि उस दुआ के अल्फाज की हकीकत हमें मालूम हो। अजीज़ान मोहतरम, करबला के मैदान में हज़रत अबुल फजल अब्बास ने वो जौहर दिखाए बिना जंग की इजाजत के। अगर जंग की इजाजत मिल गई होती तो क्या होता, क्या होता जरा सोचें। जंग की इजाजत नहीं मिली, आए हैं इमाम हुसैन के पास, आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। इमाम हुसैन के पास आते हैं, कहते हैं आका जंग की इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन कहते हैं ए अब्बास, तुम तो लश्कर के अलमदार हो। जनाब अबुल फजल अब्बास ने इधर देखा, उधर देखा, पीछे देखा, फिर आगे कहते हैं आका वो लश्करी कहाँ जिसकी मैं अलमदारी करूं। अभी इतनी ही बात हो रही थी कि एक मर्तबा खैमे से अल-अतश की सदा बुलंद हो। जैसे ही ये सदा बुलंद हुई, बीबी सकीना बाहर आई, कहती है चचा प्यास मारे डालती है, प्यास मारे डालती है। जैसे ही ये वाकया इमाम हुसैन ने देखा, कहा जंग की इजाजत तो नहीं देता लेकिन जाओ भैया अब्बास, बच्चों के लिए पानी का इंतजाम कर दो, हुज्जत तमाम करो, जाओ पानी लेकर आओ। अब जनाबे अबुल फजल अब्बास अलम को उठाते हैं। जैसे ही अलम को उठाया ना, अभी अलम बरामद होगा, तबरुकात में से है ना ये, आप उसको बोसा देंगे। किसकी याद है ये? हजरत अबुल फजल अब्बास के अलम की याद है ना। ये वो अलम है कि जिसके ऊपर नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब लिखा था। जैसे ही हजरत अब्बास ने अलम उठाया और बढ़ने लगे, इमाम हुसैन ने कहा अब्बास अलम को नीचे करो, अलम को नीचे करो। बरेरे पे नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब को मिटाकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिख दिया। अब्बास चले अलम को लेकर। फौजी आगा समझी कि अब्बास जंग के लिए आ रहे हैं, लेकिन हजरत अबुल फजल अब्बास की इस शुजाअत को देखकर, इस रफ्तार को देखकर फौज भागी, फौज भागी, अब्बास से लड़ न सकी, फौज डर से भागी। जनाब अबुल फजल अब्बास फुरात में उतरे, फुरात में उतरे। जैसे ही फुरात में उतरे, मश्क को भरा, मश्क को भरने के बाद चुल्लू में पानी लिया। पीने के लिए पानी नहीं लिया था, ये तसव्वुर ना करना। वो अब्बास कैसे पानी पी सकता है जिसे पता है कि खैमे में सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा है। अब्बास पानी का तसव्वुर करेंगे? कतई नहीं। पानी का पीने का तसव्वुर नहीं किया। ये दिखा रहे थे फौज आदा को कि देखो
अब्बास चाहता तो तुम पर हमला करके कब के फरात पे कब्जा कर लेता, लेकिन ये अब्बास अब्दे साले है, ये मुतीए इमाम है, ये मुतीए मौला है, इताअत इतनी करता है कि अगर शुजाअत जिसमें रवा दवा है लेकिन इमाम की इजाजत नहीं मिले तो जंग के लिए मैदान में नहीं आता। अब इजाजत मिली है पानी के लिए तो पानी के लिए अब्बास आया है। अब अबुल फजल अब्बास घोड़े पर सवार हुए, तेजी से फरात की तरफ, तेजी से खैमे की तरफ बढ़ रहे। सुनेंगे अजीजान मोहतरम, खैमे की तरफ अलम लेकर बढ़े ना, ये अलम अबुल फजल अब्बास है, मशके सकीना है। आज तक मशके सकीना अलम से क्यों बंधा होता है? इसीलिए ना क्योंकि अलम और मशक का बहुत बड़ा लगाव है, बहुत बड़ा ताल्लुक है। क्योंकि अलम वो है जो अब्बास के हाथ में था, लेकिन मशक वो है जिसने अब्बास की आस तोड़ दी। कैसे? जब मशके सकीना पर तीर लगा था तो अब्बास की आस टूट गई। अब्बास तेजी से ख़याम की तरफ बढ़ रहे थे कि किसी तरीके से पानी पहुंच जाए, लेकिन पानी कैसे पहुंचे? मशक पे तीर लगा हुआ है, पानी बह रहा है। तारीख ने बताया कि जनाब अबुल फजल अब्बास ने घोड़े को फरात की तरफ मोड़ा ताकि पानी दोबारा भरे। लेकिन अजीजाने मोहतरम, सुनेंगे क्या जुल्म हुआ, क्या जुल्म हुआ। किसी शकी ने ऐसा वार किया कि अब्बास का दाया बाजू कलम हो गया। अब्बास आगे बढ़े, किसी ने फिर ऐसा वार किया कि बाया बाजू कलम हो गया। अब सुनेंगे अलम डगमगाने लगा। अलम जैसे ही डगमगाने लगा, खैमागाह से बच्चे खड़े होकर एक मर्तबा कहते हैं, हाय अलम डगमगा रहा है। एक मर्तबा इधर से इमाम हुसैन तेजी से आगे बढ़े, हाय मेरा भैया मुसीबत में है, मेरा अब्बास मुसीबत में है। हुसैन आगे बढ़े, इमाम जनाब फजल अब्बास ने अलम को अपने दोनों जानू में दबाया, किसी तरीके से अलम को संभाला, मशके सकीना को दांतों से पकड़ा। अब्बास का बाजू नहीं है, हाथ कलम हो चुके हैं, अब्बास के हाथ नहीं है। तारीख ने बताया एक मर्तबा किसी मलऊन ने सर पे गुर्ज मारा, सर पे गुर्ज लग रहा था, मशके सकीना छूटा, अलम डगमगाया। एक मर्तबा सुनेंगे, एक रवायत सुने, जब बशीर इब्ने जज़रम ने जनाब उम्मुल बनीन से कहा था कि आपके बेटे के सर पर गुर्ज लगा था, जनाब उम्मुल बनीन कहती है मैं नहीं मान सकती। कैसे कह सकते हो कि मेरे बेटे के सर पे गुर्ज लगे? अरे अरब में अब्बास से लंबा और कदो कामत में कोई बुलंद था ही नहीं। किसमें जुर्रत थी कि मेरे अब्बास के सर पे गुर्ज लगा था? अजीजाने मोहतरम, अब्बास को कैसे गुर्ज लगा पता है? कहता है बशीर, ए शहजादी, ऐसे गुर्ज नहीं लगा। गुर्ज कहता है कैसे लगा? जब मशके सकीना पर तीर लगा, अब्बास ने मशक को दांतों से थामा, अलम डगमगाया, अलम को संभालने की कोशिश की। संभालने के लिए अब्बास का सर नीचे हुआ, अरे अब्बास झुके, ऐसा गुर्ज लगा कि सर में शगाफ हो गया। अब्बास जमीन पर आए, हुसैन दौड़ते हुए, एक तीर जब अब्बास की आंखों पे लगा, कुछ नजर नहीं आ रहा, खून आंखों में भरा हुआ है। जमीन पर तशरीफ लाए, हुसैन आए, जानों पर सर रखा, कहा भैया अब्बास तुम भी जा रहे हो छोड़कर? भैया अब्बास तुम भी जा रहे हो छोड़कर? कोई वसीयत है तो करो। अब वसीयत सुनेंगे क्या की वसीयत? एक वसीयत है आका, दो वसीयत है दरअसल। एक वसीयत तो ये है कि जैसे बाबा अली
पैदा हुए थे तो उन्होंने सबसे पहले अगर दीदार किया था तो रसूलुल्लाह का दीदार किया था। मैं जब पैदा हुआ था तो सबसे पहला दीदार अगर मैंने किया था तो वो अपने आका हुसैन का किया। मैं दुनिया से जा रहा हूँ, दिल चाहता है कि आखिरी दीदार भी आपका करूं। इमाम ने कहा कि क्यों नहीं करते? कहा कर सकता तो जरूर करता, मेरी एक आंख में खून है, एक आंख में तीर पैवस्त है। सीने अली अकबर से बर्छी निकालना तो सुना है ना। इमाम ने जनाब अबुल फजल अब्बास की आंखों से तीर को निकाला, तीर भी निकाला, खून को साफ किया। एक मर्तबा हसरत भरी निगाहों से अब्बास ने हुसैन को देखा, अब्बास ने हुसैन को देखा। ज़ियारत करते करते कहते आका दूसरी वसीयत ये है कि भतीजी सकीना से शर्मिंदा हो, मेरी लाश को खेमे में न ले जाइएगा। आजाद हो, क़यामत हो गई, रूह कफ़त उनसुरी से परवाज कर गई। हुसैन अलम लेकर खेमे की तरफ चले। खेमे की तरफ जैसे ही अलम आ रहा था, सकीना ने कहा बच्चों आओ, मेरा चचा पानी लेकर आ रहा है। बच्चों आओ, मेरा चचा पानी लेकर आ रहा है। अब जैसे ही जनाबे सकीना ने, बच्चों ने देखा अलम तो आया, अलमदार आया। सकीना तड़प गई, कहती है बाबा मेरा चचा कहाँ है? कहा तेरा चचा मारा गया। एक मर्तबा फुरात की तरफ रुक करके कहा ए चचा प्यास कबूल है, मुझे पानी नहीं चाहिए। चचा वापस चले आओ, सकीना बहुत प्यार करती है, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। ए चचा आए तुम गुजर गए, सकीना क्वालिटी बहुत ख़राब है ऑप्शन में।
बस यही बात है कि फंक्शन अच्छा है. खाए हालजार शान कलम है शेर है ज़ख्मी पड़ा हुआ अब्बास कत्ल हो गए महशर बपा हुआ अब्बास कत्ल हो गए महशर बपा हुआ सकीना खून से है दर पड़ी हुई इश्क़े सकीना खून से है दर पड़ी हुई अटका भी है अलम लहू से भरा हुआ अब्बास कत्ल हो गए महशर बपा हुआ महशर बपा हुआ अब्बास कत्ल हो गए महशर बपा हुआ अब्बास कत्ल हो गए महशर बपा हुआ सकीना खून से है दर पड़ी हुई इश्क़े सकीना खून से है दर पड़ी हुई का भी है अलम लहू से भरा हुआ अब्बास कत्ल हो गए महशर बपा हुआ अलम सजाओ किसी बेरिदा को याद करो लिबास हज़रत ज़ैनुल लेबा को याद करो अलम सजाओ किसी बेरिदा को याद करो अलम सजाओ सकीना कभी बावफा को याद करो अलम सजाओ किसी बेरिदा को याद करो अलम सजाओ
کٹا دیا سر کو، پڑھو نماز تو اس بے خطا کو یاد کرو، پڑھو نماز تو اس بے خطا کو یاد کرو، علم سجاؤ کسی کے رضا کو یاد کرو، علم سجاؤ کسی کے رضا کو یاد کرو، علم جو حضرت عباس کا اٹھاتے ہیں، دل بطوں سے لاکھوں دعائیں پاتے ہیں، علم کے سائے